children. Hope all of us are doing good. The topic that we will study today is animals and their feeding habits. And the things we will learn are food animals eat, how animals eat, and food chain. Now, all animals need food to live. It helps them to grow. It helps them to get energy to do work and to stay healthy and strong. जितने भी हमारे आसपास जानवर हैं, सबको खाना चाहिए जीने के लिए. खाने की वजह से जो उन्हें एनर्जी मिलती है, वो उससे ग्रो करते हैं. उस एनर्जी से वो अपने काम कर सकते हैं और खाने की वजह से ही ये हेल्दी बनते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं. थिंक टैंक. Why do different animals eat different types of food? Now let us see some food that animals eat. Animals are classified into 3 groups according to the food they eat. First are herbivores. तो जिस तरह का खाना जानवर खाते हैं उसके बेसिस पे इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. और पहला क्या है? herbivores. Some animals eat plants or plant products only. These animals are called herbivores. Parrot, grasshopper, cow, goat, deer, zebra and horse are examples of herbivores. तो वो animals जो सिर्फ plants या plants के products खाते हैं उन्हें हम herbivores कहते हैं. और examples क्या हैं? Parrot, grasshopper, goat and zebra. Next we come to carnivores. Some animals eat only flesh of other animals. These animals are called carnivores. Lion, tiger, shark, wolf and cheetah are examples of carnivores. वो जानवर जो सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें carnivores कहा जाता है. और इनके examples हैं lion, tiger, cheetah and shark. Then we have omnivores. Some animals eat both plants and flesh of other animals. These are called omnivores. Bear, crow, baboon and humans are examples of omnivores. वो जानवर जो पौधे या पौधे के प्रोडक्ट्स और दूसरे जानवरों का मांस कुछ भी खा सकते हैं उन्हें हम omnivores कहते हैं. एग्जाम्पल्स हैं बियर, क्रो, बबून. हम इंसान भी omnivores हैं. It is a fact some animals like the hyenas and vultures they eat the remains of the leftover food hunted by other animals. They also eat dead animals. They are called scavengers. तो scavengers वो जानवर हैं जो ऑलरेडी मर चुके जानवर हैं उनको खाते हैं या फिर जिन जानवरों का शिकार दूसरे जानवरों ने करा है उसको खाते हैं. इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? हाइना, वल्चर. नाउ लेट अस सी हाउ एनिमल्स ईट. नाउ डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. दे हैव स्पेशल माउथ पार्ट्स टू ईट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड. क्योंकि अलग अलग जानवर अलग अलग किस्म का फूड या खाना खाते हैं तो उनका जो मुंह है या जो मुंह के पार्ट हैं वो उसी हिसाब से बने होते हैं कि वो उस खाने को खा सकें. So first we have gnawing. Some animals like squirrels, rats and rabbits have very sharp front teeth. They cut and bite fruits, seeds and nuts with these teeth. तो ये जो एनिमल्स हैं ना जैसे कि हमारे स्क्विरल या चूहे या रैबिट इनके आगे के दांत बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं ताकि ये फ्रूट्स को या उनके सीड्स या नट्स को अपने इन आगे के दांतों से आसानी से काट सकें और बाइट कर सकें. देन वी हैव chewing the cud. Some animals such as cow, sheep and buffalo cut and eat plants using their front teeth. They first swallow the food without chewing it. After some time, they bring it back into the mouth. Then they chew it for hours. This is called chewing the cud. तो ये गायें, भैंस या बकरी जैसे जो जानवर हैं ये क्या करते हैं? ये अपने आगे के दांतों से प्लांट्स को कट करके सीधा निगल लेते हैं. ये तब
जब कट करके निगलते हैं उस टाइम पे इसको चबाते नहीं हैं, च्यू नहीं करते हैं। कुछ टाइम के बाद ये जो इन्होंने खाना निगला होता है इसको वापस अपने मुंह में लाते हैं और तब घंटों तक इस खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है च्यूइंग द cud. Think tank. Which other animal chews the cud? Now let us look at tearing. Now lion, fox, tiger and dog have very sharp, pointed and curved front teeth to tear the flesh of other animals. They have strong teeth at the back of mouth to chew bones and flesh. तो लायन, फॉक्स, टाइगर या डॉग जैसे जो जानवर हैं जो दूसरे जानवरों का मांस या हड्डी खाते हैं, इनके आगे के दांत बहुत ज़्यादा पॉइंटेड, शार्प और कर्व्ड होते हैं ताकि दूसरे जानवरों के फ्लैश को टेयर कर सकें। और इनके पीछे के दांत भी बहुत स्ट्रांग होते हैं ताकि ये बोन्स और इस फ्लैश को चबा सकें, च्यू कर सकें। इट इज़ अ फैक्ट, हैव यू सीन डॉग्स एंड कैट्स ड्रिंकिंग मिल्क विद देयर टंग? This method is called lapping. Now let us look at the special parts for eating food. Now snakes do not have teeth for chewing their food. They swallow their food. जो सांप है वो अपने खाने को निगलते हैं क्योंकि उनके दांत ही नहीं हैं चबाने के लिए। Then lizards and frogs have long sticky tongues to catch insects. अब ये छिपकली या जो फ्रॉग्स हैं ये इंसेक्ट्स पकड़ते हैं, इसके लिए इनकी जो ज़बान होती है वो लंबी होती है और चिपचिपी होती है। Then mosquitoes, butterflies and bees have a long and thin tube attached to their mouth. Mosquitoes use it to suck blood. Butterflies and bees use it to suck nectar from flowers. तो बटरफ्लाई, मॉस्किटोज और जो बीज यानी कि मधुमक्खियाँ हैं, इनका जो मुंह है इसमें एक लंबी सी पतली सी ट्यूब होती है। इस ट्यूब के ज़रिए ये या तो फूलों में से नेक्टर यानी कि फूलों का जूस को अंदर सक करते हैं या जैसे मच्छर हैं वो इंसानों का या जानवरों का ब्लड ऐसे सक करते हैं। देन एलिफेंट्स हैव अ लॉन्ग एंड थिक ट्रंक टू ब्रेक ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस एंड पुट देम इनटू देयर माउथ. दे ऑल्सो ड्रिंक वाटर यूजिंग दिस ट्रंक. तो ये जो हाथियों की लंबी सी सूंड होती है, इससे क्या करते हैं, ये जो ट्रीज की ब्रांचेस पे लीव्स होते हैं उसको इजीली तोड़ के मुंह में डालते हैं अपनी ट्रंक से, और पानी भी ये अपनी इसी ट्रंक से मुंह में डालते हैं. नाउ लेट अस लुक एट फूड चेन. लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड. दिस इज शोन थ्रू अ फूड चेन. In any food chain, a plant is at the first level. They are called the producers as they produce their own food. जितनी भी living beings हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए, और इस तरह से वो एक फूड चेन बनाते हैं. लेकिन किसी भी फूड चेन में जो सबसे पहला लेवल है उस पे प्लांट्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. Now it is a fact, some organisms like fungi and bacteria help to decay or decompose the remains of dead plants and animals. They are called decomposers. कुछ ऐसे छोटे छोटे से organisms होते हैं जिन्हें हम fungi या बैक्टीरिया कहते हैं. ये मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें decomposers कहा जाता है. Now in the given food chain, a grasshopper is eating a plant, then it is eaten by a frog, and then the frog is eaten by a snake. अगर आप ये फूड चेन देखेंगे तो सबसे पहले फूड चेन में आता है प्लांट. ग्रास हॉपर इस प्लांट को खाता है, जो फ्रॉग है वो इस ग्रास हॉपर को खाता है, और जो स्नेक है वो इस फ्रॉग को खाता है. तो ये पूरी हमारी एक फूड चेन है. थिंक टैंक. डू वी हैव फूड चेन्स फॉर aquatic animals too? Let's take a quick recap. All animals need food to live. Herbivores eat plants or plant products only. Carnivores eat only flesh of other animals.
Omnivores eat both plants and flesh of other animals. Snakes do not have teeth for chewing their food, they swallow their food. Plants are called the producers as they produce their own food. So I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.